जी बच्चा पार्टी वेलकम यू in the new class of social science, and today we are going to start the very interesting and very important chapter of political science whose name is electoral politics. आज हम लोग electoral politics के बारे में डिस्कस करेंगे. Electoral politics is an important part of our democratic system, and this electoral politics provide strengthen to our democratic form of system. When we talk about electoral politics, in this chapter we will discuss about that how the electoral practice are being done, how the elections are conducted. We will also discuss the examples of the various state. But before starting this, first of all I would like to explain about द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. जब हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जेहन में एक क्वेश्चन आता है कि वाई देर इज़ ए रेगुलर इलेक्शन इन अ डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ द नीड ऑफ दीज इलेक्शंस एंड हाउ दीज इलेक्शंस आर कंडक्टेड, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है जो इस प्रकार के इलेक्शंस कंडक्ट कराती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल there is a question that can become the student mind, and being a social science educator I supposed to explain about the elections. What are the elections? चुनाव होते क्या हैं? What do you mean by elections, or we can say चुनाव? If we talk about the elections, basically elections is a process to elect our representative. It is a process to elect our representative and it happens in a fixed tenure. ये एक process है through which we are supposed to elect our representative, जिसके माध्यम से हम अपने representative को चुनते हैं. Elections is a formal group discussion making by why a population choose a individual or multiple individual to hold office. Basically it is a process through which we are elected our representative. We elected the representative as an individual or elected as a multiple individual, those who hold the offices and to take the decision in the favor of country. जो देश के रेफरेंस में, देश के संदर्भ में डिसीजन लेते हैं, हम उन रिप्रेजेंटेटिव को इन इलेक्शंस के माध्यम से चुनते हैं. इलेक्शंस आर मैंडेटरी टू अलाइव द सोल ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी की सोल को मेंटेन रखने के लिए इट्स मैंडेटरी प्रोसेस, एंड दिस इज द प्रोसेस विच आर फॉलो एट द एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट. ईदर यू टॉक अबाउट सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और पंचायत लेवल. It is simply we can say it is a process to just choose our representative. These representative can be choose as an individual or as a multiple to just hold the offices. और ऑफिस में बैठकर जो तमाम तरीके की बुनियादी बातें और बुनियादी जो विचार आते हैं उसी के माध्यम से देश में चीज़ों को हम लोग कनेक्ट करते हैं. Now the question is why elections are mandatory. Elections क्यों? Why elections? Can our representatives be elected without the elections? It happens. I am not saying it happens somewhere, especially at the local level. When we talk about the local level, या हम किसी ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की बात करते हैं बच्चों, तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे देश में सामने आए हैं जहाँ पर व्यक्ति बिना लड़े ग्राम का प्रधान, उसका मुखिया या सरपंच डिक्लेयर हो जाता है. इट हैपन्स मोस्टली इन द विलेज. यू कैन फाइंड द सो मेनी एग्जाम्पल इन द विलेज ऑफ गुजरात, विलेज ऑफ राजस्थान एंड विलेज ऑफ उत्तर प्रदेश. इसको कहते हैं निर्विरोध होना. बिना किसी विरोध के अगर कोई व्यक्ति बिना किसी चुनाव के निर्विरोध डिक्लेयर हो जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी हमें चुनाव की आवश्यकता होती है, बिकॉज दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी. ये हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एप्लीकेबल नहीं है. तो देयर आर फ्यू पॉइंट विच आई हैव टेकन दैट वाई इलेक्शंस. इलेक्शंस क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों है.
choose representative at the regular interval. First of all, the election process give us chance to choose the representative at the regular interval. एक रेगुलर इंटरवल पर हमें यह अधिकार मिलता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करें, एंड इट इज पॉसिबल ओनली with the help of the elections. To form the government, if we are going to form a government at the any level, either the state level or the central level or at the local level, we need a elections. हमें elections की आवश्यकता होती है. Without election, we cannot decide that who will become the head of the government. Without election, we cannot decide that who will become the sarpanch of a village. Without election, we cannot decide that who will become the secretary of a company. Without election, we cannot decide that who will be the head of the company. If there is a transparent system, there are so many companies जो हेरिडेटरिकल फॉर्म में चलती हैं. आज मैं हूँ, कल मेरा बेटा होगा उस कंपनी का ऑनर, वो एक अलग बात है. बट देयर आर फ्यू पोस्ट इन ईच एंड एवरी वेयर विच आर डिसाइडेड थ्रू द इलेक्शंस. सो वी नीड अ इलेक्शंस to take major decision in the reference of the development, in the reference of education or any other. If we want to take any decision, हमें कोई डिसीजन लेना है तो हमें रिप्रेजेंटेटिव की आवश्यकता होती है. वी नीड आ गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है, एंड गवर्नमेंट इज ऑलवेज इलेक्टेड थ्रू द इलेक्शंस. गवर्नमेंट का जो चुनाव होता है इलेक्शंस के माध्यम से होता है. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि इलेक्शंस क्यों, इलेक्शन इसलिए क्यों, क्योंकि हमें रेगुलर इंटरवल पर अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना है, हमें अपनी सरकारों का गठन करना है, एंड वी हैव टू टेक द डिसीजन इन द रेफरेंस ऑफ द डेवलपमेंट. विकास के लिए हमें कोई डिसीजन लेने हैं, एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें कोई डिसीजन लेने हैं, एंड टू डू ऑल दीज टास्क इलेक्शंस आर मैंडेटरी. एंड इलेक्शंस आर द हार्ट एंड सोल ऑफ द डेमोक्रेसी. ये एक तरीके से लोकतंत्र की हृदय और आत्मा मैं कह सकता हूँ. विदाउट इलेक्शन द सिस्टम ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज नॉट पॉसिबल. जो एक ट्रांसपेरेंट एक सिस्टम होता है विदाउट इलेक्शंस पॉसिबल नहीं है. सो अगर कहीं पर इलेक्शंस नहीं भी हैं, देयर शुड बी इलेक्शंस. वी शुड गिव द चांस टू द वोटर, दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस. द रिप्रेजेंटेटिव शुड नॉट बी, उनके सामने थोपा नहीं जाना चाहिए. दे शुड हैव राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार होना चाहिए, और ये अधिकार हमें मिलता है चुनाव के माध्यम से. सो इलेक्शंस आर मच मच नीडेड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ डेमोक्रेसी. या अगर हम बात कर रहे हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सिस्टम में हम लोग रह रहे हैं, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि चुनाव हों. तो चुनाव अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है किसी भी देश में डेमोक्रेसी को अलाइव करने के लिए. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाई इलेक्शंस अकॉर्डिंग टू द चैप्टर्स. मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.